Assalamu alaikum students. So we'll start a new chapter, that is cell biology and biotechnology. So what is cell biology? See, this chapter is easy in compared to the other chapters. So just listen it clearly and carefully. It is very important chapter as well. Okay. So we'll start first concept, that is cytology. Now what is cytology? Okay, in this chapter we have to study 3 to 4 parts of the chapter. It is actually, first is cell biology, which is also called as cytology. Second is we have to study about stem cells, and third we have to study about biotechnology and its application. Fourth is we have to study important stages in the development of agriculture. So we'll go step by step. Okay students, let's start. First, what is written, it is cytology. ठीक है, what is cytology? See, in first only you can see in the bracket, cytology means the study of cell. The study, logy means study and cyto means cell, so it is together, it is called as cell study. Okay, so it is cytology. What is written, earlier we have studied the structure, types and organelles of the cell. These we have studied previously also. Organelles of the cell, we know every organelle of the cell, like mitochondria, endoplasmic reticulum, cytoplasm and Golgi apparatus, different things that are these are the different organelles of the cell, etc. This is called as cell biology, or it is called as cytology. Understood? So what is written, besides above mentioned points, it includes the study of cell division and many other aspects of the cell. It also includes cell division and different aspects. Cell division, you have also known meiosis and mitosis are the two parts of the cell division, and it imparts many different kind of the cell. Okay. Now what is written, there are revolutionary changes in the field of human health and due to cell biology. Okay, now there are certain kind of changes which is rather sudden, rather revolutionary changes which is happened in the field of human health. See, human health के इसमें भी बहुत सारे changes आए हैं. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो सेल बायोलॉजी से रिलेट करते हैं. सो व्हाट आर देन चेंजेस, वी विल स्टडी लेटर. ओके, व्हाट इज रिटन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ऑन सेल. सो रिसर्च हो रही है, सेल्स पे भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है. दे आर एस्टैब्लिश्ड एट वेयर, एट पुणे एंड बेंगलुरु. ये दो जगह पर ये सेल स्टडी इस्टेब्लिश की गई है इन इंडिया, दैट इज पुणे एंड बेंगलुरु. एंड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इज प्रेजेंट इन पुणे. ओके, नेशनल सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है सेल साइंस का, पुणे. यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दी है, यू माइट विजिट एट दैट वेबसाइट एंड यू कैन गेन इन्फॉर्मेशन. दो वेबसाइट दी, एक इंस्टेम की एट बेंगलुरु पे. दे आर इन्वॉल्व इन वैल्यूएबल रिसर्च. इन दोनों जगह पर वैल्यूएबल काइंड ऑफ रिसर्च इज बिन हैपनिंग. ये दो वेबसाइट्स पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, it is written over here, visit both the websites above and with the help of your teacher try to understand the research undergoing in those students. So you, first of all, you visit students to these website, and whatever difficulty comes to you, just ask me. Understood? Okay, so now important and very very important, this is actually, that is stem cells. Everybody should know about this. Now what is stem cells? See, these stem cells is nothing but it is a specialized kind of cell. It is specialized kind of cell which have a unique ability to develop into specialized kind of cell inside our body. Actually, these special kind of cells, what is their use? Actually, these cells in future they may be used to replace cells and tissues that can cause, that have been damaged or lost due to certain diseases. ठीक है, ये स्टेम सेल्स आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी, क्योंकि हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, जो बॉर्न के टाइम पे हमारे स्टेम सेल्स ये रहते हैं, और आगे चल के अगर आपके कुछ भी टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, डिजीज़ के दौरान कुछ ऐसा होता है, तो ये स्टेम सेल्स एट दैट पॉइंट काम आ सकते हैं. Then what is written, these are special type of cells present in the body of multicellular organism. as I already said you कि ये special type of cells है, किसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन की बॉडी में, that is multicellular organism. These cells give rise to all other type of cells present in the body of multicellular organism. ये जो सेल है, दूसरे सेल को it gives rise to different other cell types. Okay, बहुत सारे दूसरे सेल्स को भी ये टाइप देता है,
विच इज़ प्रेजेंट इन द विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सिमिलरली दीज सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग. ये सेल किसके लिए काम आते हैं? जब हमारे को कुछ चीज़ लग जाती है, वुंड आ जाता है, उसको हील करने के लिए भी स्टेम सेल्स बहुत हमारी बॉडी में काम आते हैं, विच कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन. वो सेल को डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा सेम जैसा मेरी स्किन पे अगर कुछ चीज़ का कट आता है तो क्या मेरी स्किन हमेशा वैसे रहती है? नो, ठीक है. तो मेरी स्किन पे फ़ौरन वो वुंड थोड़े दिन तक रहेगा, उसको थोड़े थोड़े देर दिन में वो हील होके सेम वैसे ही मेरा स्किन का सेम वैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा. जैसे इफ़ इट इज़ वाइट, इट इज़ लाइक जैसे सांवलापन होगा, गोरापन होगा, जैसा भी स्किन का कलर होगा मेरा वो स्किन टाइप वापस से आ जाएगा. ऐसा नहीं कि स्किन टाइप वो जगह पे अलग हो जाएगा, नो, इट डिवाइड्स अकॉर्डिंगली टू द स्किन टाइप. ओके. Now what is written? We had studied the stem cells of plants. Yes, we have studied this in the previous class also. Now we shall study the stem cells in animal, particularly in human beings. अब ये stem cells का हम पढ़ेंगे किसके अंदर? हम पढ़ेंगे animals के अंदर पढ़ेंगे और human beings के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ रिटन? न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट. ये तो सभी को पता है, ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? जाइगोट से बनता है. और कैसे बनता है? बाय द फॉर्मेशन और यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट टुगेदर दे फॉर्म अ जाइगोट. दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस. ओके. एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ सेल. जब अर्ली स्टेज पे जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो अर्ली स्टेज पे एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही हूँ मैं, वो स्टेज पे जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, देन दे फॉर्म एक मास ऑफ सेल का बंच लोग फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास ऑफ सेल्स. एंड ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक. वो मास के अंदर, वो बंच के अंदर, वो क्वांटिटी के अंदर जितने भी सेल्स रहते हैं एट दैट स्टेज, अर्लीस्ट स्टेज, वो सारे सेल्स एकदम एक दूसरे से ऑलमोस्ट दे आर अलाइक. ओके. दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. सो वो स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे जो सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज मास ऑफ सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. देन व्हाट इज रिटन फर्दर? ओके. ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दीज सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल. आगे और जो जो डेवलपमेंट होता है, ये सेल कोई और दूसरे सेल के इसमें बदल जाता है, ठीक है. अलग अलग टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करता है, जैसा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. ये बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शंस कर सकता है ये स्टेम सेल. नाउ व्हाट इज रीजन? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स. व्हाट इज दैट? Differentiation of stem cells is nothing. It is a process in which cells, tissues and organs, they acquire specialized features, especially during embryonic development. Understood? ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन वो क्या करता है? वो एक्वायर करता है. दे एक्वायर स्पेशलाइज फीचर्स एक्वायर करता है. क्यों? एट वॉट टाइम? एट टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? ओके. However, once the tissues are formed, एक बार ही अगर टिश्यूज़ फॉर्म हो जाते, the cells in those tissues at most can form some types of cells, same type of cell, sorry, only. जब टिश्यूज़ फॉर्म होते तो वो टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स रहते हैं, वो टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो मोस्टली कैसे रहते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं. ओके. दिस इज़ द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. हर बॉडी के हर पार्ट में, हर ऑर्गन में जितने टिश्यू रहते हैं उसके अंदर सेल्स सारे के सारे सेम रहेंगे. अंडरस्टूड? हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये स्टेम सेल्स मतलब काफ़ी लंबे समय तक कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में, कुछ कुछ बॉडी ऑर्गन्स में बहुत समय तक, मतलब बड़े भी हो जाते तब तक भी ये स्टेम सेल हमारे अंदर मौजूद रहते हैं. Now what is written? Stem cells are present in the umbilical cord by which fetus is joined into the uterus of the mother. अब ये umbilical cord क्या है? जब देखो बेबी पैदा होता है तब उसके देखो जो नाफ के पास उसका जो एक अटैच रहता है, दैट इज़ अटैच टू द मदर, वो उसी से अटैच रहता है मदर से, दैट इज़ अम्बलिकल कॉर्ड से वो मदर से अटैच रहता है. जिसमें फीटस जॉइंट रहता है, किससे जॉइंट रहता है? वो यूटेरस ऑफ द मदर से. मदर और बेबी का यूनियन किससे होता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज द अम्बलिकल कॉर्ड विच इज़ जॉइंट टू द यूटेरस ऑफ द मदर. अंडरस्टूड? स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एक स्टेज आता है. दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस विच अकर ड्यूरिंग द
डेवलपमेंट ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, तो उसमें एक स्टेज है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। उसके दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान स्टेम सेल वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम सेल्स अब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स। अब हमारे अंदर स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? दे आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है? इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द स्टर्नम एंड द पेल्विक गर्डल। जो हमारा है ना पेल्विक गर्डल एंड स्टर्नम, जिस सर्च इट अबाउट, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के पास, ठीक है, ये स्टेम सेल्स क्या करता है? ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लिपिड सेल्स, लिपिड रिच सेल्स है, जो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक अ फैटी काइंड ऑफ एसिड that stores the energy in the form of lipids. Understood? Now what is written? It has become possible to produce different type of tissues and the degenerated part of any organ with the help of these stem cell. ये पॉसिबल हो चुका है कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं और डीजेनरेट भी होते हैं कुछ कुछ ऑर्गन, किसकी वजह से? स्टेम सेल्स की वजह से। अंडरस्टूड? अब ये देखो एक लिखा है आपके इसमें ब्लू बॉक्स में एक चीज़ दी हुई है, दैट इज स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। For the purpose of preservation, stem cell samples are carefully collected from sources like cord blood, red bone marrow or embryo, are kept in a small sterile vials. Those vials are kept in liquid nitrogen at minus 135 degree Celsius to minus 190 degree Celsius. Now what is written? ये stem cell को preserve भी करके रखा जाता है when we are in our embryonic development, जब हमारा umbilical cord से जब हमको डिटैच कर दिया जाता है तब स्टेम सेल्स को भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कहाँ से? हम लोग कॉर्ड ब्लड हमारे अंदर से, वहाँ से हम लोग स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। रेड बोन मैरो से हमारा स्टेम सेल निकल सकता है और एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, वहाँ से स्टेम सेल। और इसको कहाँ पर रखते हैं? स्टेराइल वायल्स है ना, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब टाइप रहता है, उसके अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कितने, कभी, कहाँ पर, कितने डिग्री पे स्टोर करेंगे? नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर करते हैं -135 डिग्री टू -190 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेम सेल रिसर्च। नाउ व्हाट इज द स्टेम सेल रिसर्च? In biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after cloning. This technique has a potential of bringing about fundamental changes in the medical science. Now what is this biotechnology? See, this is nothing but it is the mating of genetically differentiated individuals. जो जेनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड इंडिविजुअल होता है उनका मेटिंग किया जाता है एंड दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो मेटिंग होती है जो जेनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स है एंड दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अभी स्टेम सेल की रिसर्च होती है और बहुत सारी चेंजेस। क्लोनिंग आपको पता है ना, क्लोनिंग हुई थी डॉली शीप, पता है आपको? डॉली शीप की क्लोनिंग हुई थी, फर्स्ट डॉली शीप पे ही क्लोनिंग मतलब इट इज़ अ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल वन। एग्जैक्ट रेप्लिका, रेप्लिकेट, एकदम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन। डॉली शीप को एक और मतलब एक शीप से एक न्यू शीप को प्रोड्यूस कर दिया गया था, न्यू तरीके से सारी चीज़ें उन्हें आर्टिफिशियली चीज़ कर, उसके अंदर जेनेटिक्स का स्टडी करके सारी चीज़ उनको करके एक शीप खड़ी की गई थी, दैट इज़ क्लोनिंग, कॉल्ड एज क्लोनिंग प्रोसेस। दिस टेक्निक, व्हाट इज रिटन, दिस टेक्निक हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द मॉडर्न मेडिकल साइंस। अब ये बहुत सारी चेंजेस लाती है, किसमें? मेडिकल साइंस में। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल। क्या है ये? सोर्स के मुताबिक स्टेम सेल्स दो तरीके के रहते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक, सेकंड होता है एडल्ट स्टेम सेल्स। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। व्हाट इज रिटन? डिवीजन ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स एंड देयरबाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। पहले जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो किस में कन्वर्ट होता है? फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अब ये जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं,
एम्ब्रियो के पास जो सेल्स है वो क्या अंडरगो करते हैं, माइटोटिक डिवीजन. इट इज़ नथिंग बट द इक्वेशनल डिवीजन. वो क्या होता है, इक्वल वापस से इक्वली डिवाइड होता है, मतलब उतना ही नंबर का और ज़्यादा बनता है, इक्वली डिवाइड होता है. सेल्स डिफ्रेंशिएशन अकर फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन. सेल डिफ्रेंशिएशन कब स्टार्ट होता है, यू हैव बीन सीन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज ओव्यूलेशन डेट, जो 14th डे पे होती है. अंडरस्टूड. तो वो 14th डे ऑफ कंसेप्शन पे सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है. सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स विच इज़ द बोन सेल्स. सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स के जो अलग अलग सेल्स है उसके नाम यहाँ बताया हमको. दैट इज ऑस्टियोसाइट्स विच इज़ द बोन सेल्स, हिपैटोसाइट्स दैट इज द लीवर सेल्स, एंड न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन. ये सारे फॉर्म होते हैं. ठीक है. एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन मैंने बताई व्हाट इज़, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें जो सेल या टिश्यू या ऑर्गन वो एक्वायर करते हैं बहुत सारे फीचर्स को, स्पेशलाइज्ड फीचर्स को. कब, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अंडरस्टूड. सो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफ्रेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. अब एम्ब्रियोनिक सेल्स डिफ्रेंशिएशन स्पेशलाइज्ड फीचर एक्वायर करने से पहले क्या कहते थे उसको, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. Understood. Now what is written, 220 different types of cells in the human body are formed from single type cells. 220 अलग अलग टाइप के सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होते हैं फ्रॉम एक सिंगल टाइप सेल से. कितने सेल फॉर्म होते हैं, 220. दैट इज 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म विद ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ सेल, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. मतलब एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से 220 तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. 10 स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स विथ सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर द पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल सेल टाइप्स ऑफ ह्यूमन. अब ये जो स्टेम सेल्स है, मैंने क्या बोली, ये स्टेम सेल सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है जो डिफरेंट टाइप के सेल्स को और प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट फंक्शंस करता है इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये क्या हो गया, इट इज़ द पेरेंट सेल ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमंस. तो ये सेल्फ मल्टीप्लाइंग भी रहता है, ये खुद से मल्टीप्लाई भी करता है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो खुद से मल्टीप्लाई भी करता है. Now, this property of stem cell is called as pluripotency. ये जो प्रॉपर्टी है कि वो खुद से एबिलिटी रखता है मल्टीप्लाई करने की, प्लस वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लूरीपोटेंसी. अंडरस्टूड. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ दीज स्टेम्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑन द 14th डे, that is during 5th to 7th day and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory. आप क्या बताया, अगर ये स्टेम सेल को सही से सही टाइम पर कलेक्ट करके बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, मतलब 14वें दिन पे ओव्यूलेशन वाले डे पे डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अगर नहीं करते, तो कब 14th डे मतलब 5वें और 7वें दिन जब कल्चरिंग का रहता है विथ सर्टेन बायोकेमिकल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है लेबोरेटरी में, जो ट्रिगर करता है बायोकेमिकल स्टिमुलस, इट ट्रिगर्स द केमिकल्स जो विच कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू डिज़ायर्ड टाइप ऑफ सेल. जैसे टाइप के सेल्स उनको चाहिए वो वैसे टाइप के सेल्स में डिज़ायर हो जाएंगे. देयरफॉर टिश्यूज़ एंड फाइनली इनटू ऑर्गन्स. सबसे पहले वही बोली ना, सेल से बनता है टिश्यू, तो सेल्स खुद अपना मल्टीप्लाई होकर टिश्यूज़ बनाता है. जैसे उसको टिश्यूज़ चाहिए थे वह वैसे ही अपने टिश्यूज़ बनाता है. टिश्यूज़ बनाने के बाद फाइनली वो क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है. इट इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गन्स. अंडरस्टूड. नाउ विल गो मूव ऑन टू द adult stem cells. Okay, now in this what type of stem cells are produced? Stem cells that can be obtained from the adult person. Stem cells can be obtained from the body of adult. तो अब stem cells सिर्फ embryonic development नहीं मिलता है, वो adult के भी अंदर stem cell मिलता है. There are 3 main sources of stem cells in the body of adult person. 3 तरीके से अलग अलग stem cells produce होता है बॉडी में adult के. स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रेड बोन मैरो जो स्टर्नम और पेल्विक गर्डल के बीच में रहता है. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मैंने ऑलरेडी बता चुकी, विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स. और ये लिपिड रिच सेल्स है जो क्या कंस्टिट्यूट करता है पता है, 20 to 25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो ये हमारी बॉडी का 20 से 25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट कैरी करता है. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज रिटन, stem cells can besides stem cell
कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर द बर्थ, मतलब बर्थ होने के बाद फॉरन बर्थ होने के बाद ब्लड के अंदर से भी, ये कॉर्ड ब्लड कहते हैं, विच इज़ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, तो उसको कॉर्ड ब्लड कहते हैं, जो क्या होता है जिसके अंदर से हमको स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो सकता है. अब हमको यूजेज ऑफ स्टेम सेल पढ़ना है स्टूडेंट्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ यूजेज ऑफ स्टेम सेल. लेट्स स्टार्ट. First is, what is the use of stem cells? It is regenerative therapy. Now what is regenerative therapy? First, regenerative therapy is nothing but, first it is cell therapy. What happens in cell therapy is stem cells are used to replace the dead cells in case of condition. जब dead cells होती है, बहुत सारी अलग अलग बीमारी होती है जहाँ पर cells जो है ना हमारे dead हो जाते हैं, तो ये स्टेम सेल्स क्या काम करता है, उन डेड सेल को रिप्लेस कर सकता है और बहुत अच्छा रहता है ये रिप्लेसमेंट. कौन सी बीमारियों में हमारे जो सेल्स है वो डेड हो जाते हैं? दैट इज़ डायबिटीज़ पता ही होगा सबको, शुगर लेवल, यस, डायबिटीज़ में. देन सेकंड इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? ये इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल. मतलब जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, हार्ट मसल तक पहुंच नहीं पाता है, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन. थर्ड इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़. सी, अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ नथिंग, Alzheimer's and Parkinson's disease, it is also a disease which happens for different things. Okay, you can go and search about Alzheimer and Parkinson's disease. Now what is written? To produce blood cells require in the conditions like anemia, मतलब अनेमिक जो पर्सन है जिसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो वही बता रही है कि इसमें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्लड सेल्स, और अनेमिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. थैलेसीमिया क्या है? ये इट इज़ नथिंग, एक फाइट है बॉडी के लिए. इट इज़ एबिलिटी टू फाइट इन अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो क्या फॉर्म कर सकता है? इट कैन फॉर्म द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग द टिश्यूज़. ठीक है, ये ब्लड कैंसर भी फॉर्म कर सकता है. ल्यूकेमिया भी यही है कि वो क्या करेगा, जिसके अंदर WBCs का शॉर्टेज होता है इसमें, ठीक है, एक्सेट्रा. अब देन व्हाट इज़ रिटन? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अब हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट सभी को पता है क्या होता है. व्हाट इज़ रिटन? इन केस ऑफ फेलर ऑफ द ऑर्गेन्स. जैसा किसी का ऑर्गन ख़राब हो जाता है, 2 किडनी में से 1 किडनी फेल हो जाती है, बोलते हैं ना, तो वो ऑर्गन ख़राब हो गए हैं, लीवर ख़राब हो जाता है. दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड. ये वापस से प्रोड्यूस किया जा सकता है. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स, एंड वो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है. Okay, so let's study about the organ transplantation. What is this organ transplantation, students? What is written? Various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons. ये कुछ various organs human की body में कैसे रहते कि वो इधर वो कम यूज़ में आ जाते हैं, या फिर वो कम्प्लीटली फंक्शन, उसका कुछ भी काम नहीं करता है, वो फंक्शनलेस हो जाते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से. या फिर एज हो जाती है, एजिंग, एक्सीडेंट हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिसऑर्डर की वजह से भी. ओके, लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम डिफ़िकल्ट और इवन फैटेलिटी में अकर अंडर सच कंडीशंस. तो क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाती है, और मतलब कोई यूज़ की भी नहीं रहती है वो लाइफ वो कंडीशंस में, कोई पीपल या कोई पर्सन के लिए. However, if a person gets the necessary organ under such condition, its life can be saved. अगर किसी का किडनी वगैरह फेल हो गया तो उसको अगर कोई नेसेसरी ऑर्गन मिलता है, कोई कंडीशंस के तहत अगर वो चीज़ ऑर्गन मिलती है जिससे उसकी जान भी बच सकती है, वो कैसे होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक कोई डोनेट ऑर्गन करेगा नहीं तो ऑर्गन तो मिलेगा नहीं हमको, किडनी तो मिलेगी नहीं हमको, राइट. तो ऑर्गन डोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई अवेलेबल होना चाहिए कि वो डोनेट कर सके अपना ऑर्गन, ठीक है. ज़्यादातर होता नहीं है ऐसा, कौन करेगा अपना ऑर्गन डोनेट. ओके, ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज. हर इंसान के पास एक पेयर ऑफ किडनीज है, मतलब 2 किडनी हर इंसान के बॉडी में मौजूद होती है. एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन अकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी. अब जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, वो ज़रूरी नहीं है 2 किडनी से हो, वो 1 किडनी से भी हो सकता है. पर्सन कैन डोनेट अनदर वन. सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड. मतलब
देखो एक किडनी से भी काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ दो होना अलग बात हो जाती है, वो नेचुरली अकरिंग रहती है, ठीक है। अब या फिर बताया सिमिलरली, यहाँ पर खाली बता रहा है कि कौन कौन से ऑर्गेन्स को आप डोनेट कर सकते हो। स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो भी डोनेट, मतलब हमारी स्किन पे थोड़े थोड़े जो पार्ट्स है स्किन के वो भी कुछ कुछ डोनेट किए जा सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड एज एक्सेट्रा ऑफ द डोनर एंड रिसिपेंट नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। अब जब ट्रांसप्लांटेशन अगर करना है तो डोनर का ब्लड ग्रुप, रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप ये मैच होना चाहिए। इन लोग के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है वो देखना है। इन लोग की एज फैक्टर क्या है, ऐसा नहीं भाई 17 बुढ़े को, अगर कोई बूढ़ा है उसको ज़रूरत है तो उसको कुछ एकदम यंग वन का दे दे, ऐसा भी नहीं चल सकता है, राइट। या यंग कोई है उसको ज़रूरत है तो उसको एकदम बूढ़े का दे दे, हमको एज भी मैटर करती है। इट शुड बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। नाउ व्हाट इज रिटन, हाउएवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, कोई अब दूसरे ऑर्गन्स कभी डोनेट नहीं किए जा सकते, जैसा कि लीवर नहीं डोनेट किया जा सकता, हार्ट, आइज कैन बी डोनेटेड आफ्टर ओनली डेथ, ये सब डेथ के बाद ही डोनेट की जा सकती है। दिस हैज़ लेड टू इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक पोस्थ्यूमस आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन। जो डेथ होने के बाद डोनेशन करते हैं उसको बोलते हैं पोस्थ्यूमस, ठीक है। तो इसको ये एमरजेंस है कॉन्सेप्ट को समझने में, एमरजेंसी है एक्चुअली ये सारी चीज़ों की, कि जो काफ़ी जो ऑर्गन्स है जो मरने के बाद डोनेट कर सकते हैं, दैट इज़ हार्ट, लीवर, आइज। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। अब इसके बारे में पढ़े, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल चीज़ स्टूडेंट्स, यू कुड गो थ्रू दिस। आपको ये चीज़ देख के भी देखो समझ आ ही जाएगी आपको। यू कैन सी लाइक दिस, ओके, दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्टेम सेल है ये वाला, ये रेप्लिकेट कर सकता है सेम तरीके से भी, और ये क्या कर सकता है, मैंने पहले ही बोली कि अलग अलग सेल टाइप्स में डिवाइड भी करेगा, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन, ये पेरेंट सेल। ये एक स्टेम सेल देखो क्या क्या काम कर रहा है, पहले रेप्लिकेट हो रहा है सेम जैसा ओरिजिनल रेप्लिका बन रहा है, और क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ओके, organ and body donation. What is written, human bodies are disposed of after death as per the traditional customs. ट्रेडिशनल कस्टम्स जो रहता है हिंदूज़ का एंड डिफरेंट अलग अलग रिलीजन्स का, क्या कर देते हैं उन लोग, डिस्पोज ऑफ कर देते, उन लोग ख़त्म कर देते हैं उस इंसान को एज पर द ट्रेडिशनल कस्टम्स। हाउएवर ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस, साइंस का जैसे जैसे तरक्की हुआ जा रहा है, it has been realized that many organs remain functional for certain period even after death occurs under specific conditions. तो साइंस का जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है, जैसी जैसी तरक्की टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये पता लगाया गया कि मरने के बाद भी कुछ समय तक, कुछ टाइम तक जो ऑर्गेन्स है वो ज़िंदा रहते हैं, वो जो ऑर्गेन्स है वो काम करते हैं मरने के कुछ टाइम तक, लेकिन कोई अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस में ये चीज़ पॉसिबल है। Concept like organ donation and body donation have emerged recently after the realization of that such organs can be used to save the life of other needful person. अब जो ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गन के डोनेट करने का, एक पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करने का, ठीक है, तो ये कब रियलाइज़ हुआ, ये रियलाइज़ तब हुआ कि जब साइंस का तरक्की हुई, व्हेन वी हैव रियलाइज दैट इस ऑर्गन्स को मरने के बाद भी कुछ हद तक, जब ऑर्गन्स कुछ समय तक ये ऑर्गन्स वर्क कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम फ़ौरन उस चीज़ को निकाल के अगर किसी की लाइफ सेव हो सकती है, वही इसमें बताया गया टू द अदर नीडफुल पर्सन। अब लिबरल व्यू बिहाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज़ दैट आफ्टर डेथ और बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन सो दैट देयर इज़ माइजरेबल लाइफ वुड बी बिकम कंफर्टेबल। मतलब ऐसा बताया कि जो बॉडी ख़त्म हो चुकी है अभी, वो दूसरों के लिए मददगार लोगों को, मतलब उन लोग के लिए वो चीज़ यूज़ हो जाए, काम आ जाए, तो उन लोग की जो मिजरेबल लाइफ है, जो एकदम परेशानी भरी लाइफ है, वो कंफर्टेबल हो जाए। अवेयरनेस अबाउट दीज कॉन्सेप्ट इज़ इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री एंड पीपल आर वॉल्यूंटरली डोनेटिंग देयर बॉडीज़। अब जो हमारी कंट्री में इसकी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग जानने लगे हैं इस ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो यही पीपल खुद से वॉलंटरी, मतलब खुद से डोनेट करना चाह रहे हैं ऑर्गन्स, ठीक है। लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है ऑर्गन और बॉडी डोनेट करके। ब्लाइंड्स कैन रीगेन द
विजन, ब्लाइंड अंधे लोग को अपनी विजन मिल सकती है आँखें मिलकर. लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनीज, हार्ट वॉल्व्स, स्किन एक्सेट्रा. बहुत सारी लाइफ जो ख़राब हो चुकी है वो कंफर्टेबल हो सकती है सारे ऑर्गन्स को डोनेट करने के बाद, एक्सेट्रा. दैट इज सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज. बॉडी बहुत सारे रिसर्च के लिए जाती है मेडिकल स्टडीज़ में. मैनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन. अब गवर्नमेंट और जो बाकी की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा काम कर रही है. वाई? जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस, कि लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के बारे में, दैट वाई इट इज़ यूजफुल फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स, दैट देयर मिजरल लाइफ कैन बिकम अ कंफर्टेबल लाइफ. ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज biotechnology. Is also very very important concept, students. So we will start biotechnology. Okay, let's start. See, biotechnology, what it is nothing but it is a broad area of biology. What it is a broad area of biology. It involves the use of living systems and organisms to develop or make the products. So this is the biotechnology. Okay, we have studied in earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes. What have we studied? ये biotechnology बहुत सारे artificial और genetic changes लाता है and hybridization in organisms. I'm really sorry to speak about biotechnology in the previous concept. That was, I told you all about actually it was नॉट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का जो मैंने अभी बताया कि वो ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी है, वो क्या यूज़ में आता है, लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के वो डेवलप कर सके और कुछ प्रोडक्ट्स बना सके. और जो मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल, मतलब पहले वाला डेफिनेशन बताई, वो थोड़ा रॉन्ग था. वो डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन का था स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि मेटिंग होती है. हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग, मेटिंग होती है जेनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड और इंडिविजुअल या ग्रुप्स की, जो क्रॉसिंग ओवर भी इन्वॉल्व करते हैं इन ऑर्गेनिज्म फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. ओके, वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस जैसा कि साइटोलॉजी, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in the biotechnology. Biocytology तो पता है, study of the cell. Biochemistry भी पता है. Molecular biology का मतलब क्या होता है? हाँ, molecular biology का मतलब ये होता है in which the molecules, like we study about the composition, structure and also the interaction between the molecules and nucleic acids और proteins. ये होती है molecular biology की study. ठीक है, और अलग अलग है जेनेटिक इंजीनियरिंग. देयर इज़ अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल प्रोग्रेस हो चुका रहता है. किस में? एग्रीकल्चर में होता है, फार्मेसी में होता है. फार्मेसी पता है ना, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स में. ओके, न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीन परफॉर्म्ड फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल यील्ड. बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इम्प्रूव कर सकते, जो एग्रीकल्चर का यील्ड है उसको डे टू डेली लाइफ में हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं. कुछ नई चीज़ आए कभी एग्रीकल्चरल फील्ड में. और फार्मेसी में जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. क्योंकि एंटीबॉडीज़ को हम लोग को प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ ज़्यादा करना है हमको, वाइटामिन्स का, हार्मोन्स का, जैसा कि इंसुलिन हैव बिकम सक्सेसफुल. ओके, हाई क्लास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर. बहुत सारे हाई क्लास वैरायटी के जो क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुए. किससे? टिश्यू कल्चर टेक्निक से. ओके, टिश्यू कल्चर टेक्निक विल स्टडी इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, पहले हम लोग इसके मेन एरियाज़ पढ़ लेते कि कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है. सेकेंड, इसके बेनिफिट्स और यूजेस पढ़ लेंगे. What is written? Biotechnology include the following main areas. First is use of various abilities of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses. ये हमने देखो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में ये चीज़ को पढ़ा है. वॉट इट इज़ द वेरियस एबिलिटी के माइक्रोब्स के पास इतनी एबिलिटी रहती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके. योगर्ट मतलब दही,
जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है योगर्ट प्रोडक्शन, इट इज़ जस्ट बिकॉज द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स, ओके, which is produced from the dairy product, which is milk, and also alcohol from the molasses. I already told you about the molasses, that is the sugar molasses, okay, which जिसको हम लोग को मतलब उसको सेपरेट करके जो हमको डार्क पार्ट मिलता है वो होता है शुगर का मोलासेस, ओके. यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की प्रोडक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स भी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ बीन टेकन जस्ट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ बीन प्रेजेंट और शुड वर्क अगेंस्ट इट और शुड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है उनकी रिप्रोडक्शन को, ठीक है. देन व्हाट इज़ रिटर्न, और वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करना होता है एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कुछ सेल्स रहती है उसकी मदद से क्या करना होता है, उसका प्रोडक्शन करना होता है. देन थर्ड इज़ यूज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में भी बायोटेक्नोलॉजी काम आता है, जैसा कि डीएनए एंड प्रोटीन्स इन द ह्यूमन वेलफेयर. डीएनए और प्रोटीन्स में भी ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आती है. देन व्हाट इज़ रिटर्न, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन. जो डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, प्रोडक्ट्स का, जो उसका हमको डिज़ायर्ड खुद से क्वालिटी बनानी होती है, कैसा, जीन मैनिपुलेशन. मतलब क्या होता है जीन मैनिपुलेशन का, ये मतलब होता है कि जीन मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस, अंडरस्टूड. तो किसका मॉडिफिकेशन होता है, इट हैपन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर, क्या, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया. बहुत सारे ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, किसकी मदद से, जेनेटिकली मॉडिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से. फिफ्थ इज़ यूज़ ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक. जेनेटिक या फिर नॉन जेनेटिक टेक्निक को यूज़ कर दिया जाता है. नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इन्वॉल्व करती है, वो इन्वॉल्व करती है यूज़ ऑफ इधर सेल और इधर टिश्यू. सेल या टिश्यू से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है. एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड. हाइब्रिड सीड मतलब मेटिंग के सीड्स रहते हैं, आर्टिफिशियली मेट करते हैं वो सीड. टिश्यू कल्चर मैंने बोली, आगे हम पढ़ेंगे. बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है. इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टेयर यील्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ क्रॉपलैंड एरिया. क्या बेनिफिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए. क्यों, क्योंकि इंक्रीज़ करना बायोटेक्नोलॉजी के लिए कि इतनी ज़्यादा पर हेक्टेयर यील्ड, इतना ज़्यादा जगह लेने का इन रिस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेशन. अब जो लिमिटेशंस नहीं रह गई है क्रॉप लैंड एरिया लेने के लिए, वो सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट हो गया है. एक्सपेंसेस ऑन डिजीज़ कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैराइटीज़. अब जो एक्सपेंस होते हैं, जब जो खर्चे होते हैं डिजीज़ में, उसको कंट्रोल करने में भी एक किसका अलग ज़्यादा हाथ है. जैसा कि बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फार्मेसी में भी मेडिसिन्स बहुत सारी बन चुकी है, प्रोडक्शन हो चुका है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स का. तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां रहती थी जिसकी दवाइयाँ जो नहीं मिलती थी, उसकी वजह इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. थर्ड इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैराइटीज़, यील्ड पर एनम हैज़ इंक्रीज. फ्रूट सेटिंग वैराइटीज़ भी इंक्रीज़ हो चुकी है, डेवलपमेंट इन फ्रूट्स भी आ चुका है. कि अभी देखो फ्रूट आप देखते हो बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट मौजूद होते हैं, जैसा कि उसको इंजेक्शन्स लगा के फ्रूट देते हैं. ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैराइटीज़ विच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स एक्सेट्रा हैज़ बिकम पॉसिबल. तो क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हमारी स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करती है, जो क्या रिलीज़ करता है, टेम्परेचर, वाटर के स्ट्रेस को, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी चेंज कर सकता है, जो आज के ज़माने में पॉसिबल है. Understood students, now this much is enough. So next concept we will start in our next video, which is nothing but crop biotechnology, commercial applications we will study of biotechnology. Till here everyone understood students? Okay, thank you.